فیصل آباد ڈویژن میں ڈاکو راج، کہیں چوری کہیں ڈاکہ، شہری اور عام تاجر دن دہاڑے لٹنے لگے۔ درجنوں وارداتیں معمول بن گئی، پولیس روایتی کارروائیوں سے آگے نہ بڑھ سکی، خواتین بھی غیر محفوظ۔ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں راہزن نے شاپنگ کے لیے نکلی خاتون کو موبائل چھین کر دھکا دے دیا، بری طرح گھسیٹا، اٹھا کر پٹخ دیا اور موبائل چھین کر بھاگ گیا۔ دھوبی گھاٹ کی شمائلہ نامی خاتون گھر سے شاپنگ کے لیے نکلی تھی۔ سٹی 41 نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں موبائل چھیننے کے دوران خاتون کو بری طرح گرتے اور موبائل کے لیے ڈکیت کے پیچھے بھاگتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ SP ارتضیٰ کمیل کے فوری ایکشن پر گلبرگ پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا۔ محمد پورہ کے توقیر کو CCTV فوٹیج سے شناخت کیا گیا۔ ملزم کو حوالات میں بند کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔ چک جھمرا میں ڈاکو نے دن دہاڑے سبزی منڈی کی دکانیں لوٹ لی۔ 4 موٹر سائیکل سوار درجن بھر ڈاکو 4 دکانوں سے لاکھوں روپے لوٹ کر اطمینان سے فرار ہو گئے۔ لوٹ مار کی CCTV فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں 2 دکانوں کی لوٹ مار واضح دیکھی جا سکتی ہے۔ اطلاع ملنے پر تھانہ چک جھمرا پولیس جائے واردات تک پہنچ گئی اور حسب روایت کے بعد شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ ادھر غلہ منڈی چینیوٹ کے سامنے ٹور اینڈ ٹریول ایجنسی پر ڈکیتی واردات ہوئی۔ 2 ڈاکو ٹریول ایجنسی سے 10 لاکھ روپے نقدی اور 3 موبائل لے اڑے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ 4 سوا 4 کا ٹائم تھا، 2 آدمی آئے ہیں 1 to 5 پہ، انہوں نے باہر کھڑا کیا، جیسے دروازہ کھلا انہوں نے وہیں پہ اسلحہ تان لیا۔ اسلحہ تان کے ہم تھے دراز توڑ کے، اس میں نقدی پڑی تھی جو آج ہی کلائنٹ ہمیں دیکھ گئے تھے عمرہ کے لیے، وہ 10 لاکھ سے اوپر کی وہ گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے موبائل اور ہماری جیب وہ سارے خالی کر کے وہ یہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ بھٹا سٹاف فیصل آباد پر مبینہ چور گودام مالک سے ہاتھا پائی کے دوران ہلاک ہو گیا۔ مالک عبدالرزاق کے مطابق ہمسایہ راشد گودام میں چوری کی نیت سے داخل ہوا، آنکھ کھلنے پر ہاتھا پائی ہوئی۔ راشد کا سر دیوار پہ لگا، سر کی چوٹ سے راشد موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جھنگ بازار پولیس نے راشد کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی۔ فیول بحران، PIA پرواز بھر نہ سکی اڑان، PSO کا قومی ایئر لائن کو فیول دینے سے انکار۔ فیصل آباد سے کراچی کی پرواز PK 341 تاخیر کے بعد منسوخ، مسافر پریشان، ایئرپورٹ پر PIA عملے سے تلخ کلامی۔ آپ کو بتا رہے ہیں PIA پرواز بھر نہ سکی اڑان، PSO کا قومی ایئر لائن کو فیول دینے سے انکار۔ فیصل آباد سے کراچی کی پرواز PK 341 تاخیر کے بعد منسوخ، مسافر پریشان، ایئرپورٹ پر PIA عملے سے تلخ کلامی۔ CBA یونین PHA کا مطالبات کی منظوری کے لیے PHA کمپلیکس میں احتجاج۔ CBA یونین نے مالی کو مبینہ ٹالیاں دینے پر ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہیر احمد کو کرسی سے اٹھا دیا۔ صدر CBA یونین رانا یاسر کا کہنا ہے 7 دن میں ڈائریکٹر کو سیٹ سے نہ ہٹایا گیا تو کام چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ فیسکو کا رجن بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھرپور طریقے سے جاری، ڈائریکٹ تار، میٹر ٹیمپرنگ اور دیگر طریقوں سے بجلی چوری اب نہیں چلے گی۔ بجلی چوروں کو کروڑوں روپے کے جرمانے متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کرا دیے گئے۔ ڈائریکٹ تار، میٹر ٹیمپرنگ اور دیگر طریقوں سے بجلی چوری اب نہیں چلے گی، فیسکو کا کریک ڈاؤن جاری۔ فیصل آباد سے 24 گھنٹوں کے دوران 48 بجلی چور پکڑے گئے۔ بجلی چوروں کو 97,000 سے زائد ڈیڈکشن یونٹس چارج، بجلی چوروں کو 42 لاکھ روپے جرمانے عائد، مقدمات متعلقہ تھانوں میں درج کروا دیے گئے۔ فیسکو حکام نے بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ جھنگ میں بھی بجلی چوروں کی پکڑ، 1 ماہ کے دوران 271 بجلی چوروں کو دھر لیا گیا۔ بجلی چوروں کو 4 کروڑ سے زائد کے جرمانے عائد کر دیے گئے، 2 کروڑ سے زائد کی ریکوری بھی کر لی گئی۔ ایسی فیسکو مدثر شیخ کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلز جمع نہ کروانے والوں سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ تاندا والا میں بھی بجلی چوروں کی شامت آ گئی۔ مامو کانجن اور کلیاوالا سب ڈویژن کے ٹاسک فورس ٹیم نے ڈائریکٹ سپلائی سے چلنے والے 2 ٹیوب ویلز میٹرز پکڑ لیے۔ چک 194 میں احمد شیر ڈائریکٹ تار لگا کر ٹیوب ویل چلا رہا تھا۔ کلیاوالا میں عابد حسین کا ٹیوب ویل بھی ڈائریکٹ سپلائی سے چل رہا تھا۔ فیسکو حکام نے بجلی چوروں کے میٹرز اور تار اتار لیا۔ ایکسین غلام نبی نے کہا کہ بجلی چوروں کو 16 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ موقع پر بجلی چوروں سے 7 لاکھ روپے کی ریکوری بھی کر لی گئی ہے۔ فیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ فیسکو حکام نے لالیہ ڈویژن میں 399 چھاپے مارے، 63 بجلی چور پکڑ لیے گئے۔ بجلی چوروں کے کنیکشن منقطع، متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج۔ 63 بجلی چوروں میں سے اب تک 34 کو دھر لیا گیا۔ فیسکو نے 8,95,000 سے زائد کی رقم ریکور کر لی ہے۔ بجلی ہندگان صنعتی صارفین کے گھریلو کنیکشن کاٹنے کی پالیسی اثر دکھانے لگی۔ رننگ ڈیفالٹر سے 1 ماہ کے دوران 9 کروڑ 57 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ مستقل نادہندگان سے اب تک 25 کروڑ 65 لاکھ سے زائد کے واجبات وصول کر لیے گئے۔
फेस्को का डिफॉल्टर्स का रिकॉर्ड नादरा से हासिल करने की मंसूबा बंदी पर काम जारी। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है डिफॉल्टर से कोई रियायत नहीं होगी। इंडस्ट्रियल डिफॉल्टर के घरों के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा रहे हैं। हुकूमत के गैर मुल्की सरमायाकारी के दावे, मगर कौमी सनतकार मुल्क की मुआशी हालात से मायूस, सरमाया मुल्क से बाहर मुंतकिल करने लगे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नुमाया कमी, रिकॉर्ड $9 बिलियन के खसारे की वजह हुकूमती पॉलिसीज को करार। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। रोजगार की तलाश में आम पाकिस्तानी की तरह मुकामी सरमायाकार भी अपने कारोबार के लिए बाहर का रुख करने लगे। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान ने सनतकारों को भी बददिल कर दिया। पावर लूम, स्क्रैप, ऑटो लूम्स बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाने लगी। एक्सपोर्टर खालिद नदीम कहते हैं सनतकारों की बस हो चुकी है और गैर यकीनी सूरत हाल ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। बिजली, गैस रेट्स, रिफंड्स के मसाइल, सनतकार मजीद माली मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कारोबार को दीगर ममालिक में मुंतकिल करने को तरजीह दे रहे हैं। गवर्नमेंट इस पर कोई टेकअप नहीं करेगा तो ये मजीद हम वर्केबल नहीं रहेंगे और बिजनेस नहीं हुआ। देखें आपको, जब तक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा है सारा, तो जब तक अगर हमें रेमिटेंस नहीं आएगी तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता रहेगा। दूसरी जानिब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। रवा साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सिर्फ $16 बिलियन रही। पाकिस्तान का इस साल एक्सपोर्ट का टारगेट $25 बिलियन था। सनतकारों ने $9 बिलियन के खसारे की वजह हुकूमती पॉलिसी को करार दे दिया। बोले हम गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आलमी मार्केट में साख हो रहे हैं। अपनी कमाई के सीजन में सनतकार ऑर्डर्स की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। बरामदात में इजाफे के लिए साजगार माहौल और सनतकार दोस्त पॉलिसी नागजीर है। अगर इतनी इन्होंने इंपोर्ट कम किया डॉलर बचाने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपके कारोबार में यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। आपका एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सका। दूसरी चीज़, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। सनतकारों ने एक्सपोर्ट में बेहतरी के लिए बिजली और गैस की कीमतों में कमी, बर वक्त रिफंड्स की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, सर्दियों से पहले ही सुई गैस सार्फिन की जान पे बनाई। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में गैस उड़न छूट, मुतबादिल ईंधन जेब पर भारी पड़ने लगा। सर्दियों की आमद से कबल ही फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के अहम इलाकों में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, सत्याना रोड, गुलाम अहमदाबाद 2, इस्लाम नगर, तारकाबाद से गैस गायब है। सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें महंगे दामों खाने पीने की अशिया खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। गैस की वजह से ये खाना लेके आए हैं बाहर का, और इतनी प्रॉब्लम है, मेहमान आ जाए तब हम लोग बाहर से परचेज करते हैं। हालात ऐसे हैं, अब किधर जाएं, ना गैस आ रही है प्रॉपर, बस बहुत टफ जिंदगी गुजार रहे हैं हम। शहरी हलकों का कहना है कि अभी तो सर्दियां शुरू भी नहीं हुई कि गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शहर भर में जारी हो गया है। कभी 2 घंटे आती है, 3-4 घंटे बंद रहती है। सुबह को आती है 6 बजे से 8 बजे तक, बाद में फिर बंद रहती है। दोपहर को आती है घंटा 1.5 घंटा, फिर शाम को आती है 2 घंटे तकरीबन। शाम को 8 बजे बिल्कुल बंद, कल 7 बजे बंद हो गई थी, कल 7 बजे। कभी भूखे सोते हैं बच्चे, कभी खा लेते हैं। बाहर तो बच्चों का दूध लेना भी छोड़ दिया है, खाना कैसे खिलाएंगे। गैस, नापेद, जलाने वाली लकड़ी के रेट भी बढ़ गए। शहरियों ने अला हुकाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। अस्पताल फैसलाबाद की तज़ीनो आराइश के लिए 1 अरब 36 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मंजूरी दी। उधर डिप्टी कमिश्नर जंग ने DHQ हॉस्पिटल में वार्ड्स की बहाली के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, अलार अस्पताल में होंगे तरक्याती काम, शहरियों को मिलेगा साफ सुथरा माहौल। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू की ज़ेरे सदारत सफाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। अलार अस्पताल फैसलाबाद की तज़ीनो आराइश के लिए 1 अरब 36 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर। हेल्थ सेक्टर की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से जायद के फंड्स मंजूर किए गए। उधर निगरान हुकूमत के जंग में सेहत मंसूबों पर अहम पेशरफ्त। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल में वार्ड्स की बहाली के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। अस्पताल इंतजामिया और ठेकेदार को गुलाम नबी ब्लॉक और मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी मुकम्मल करने के लिए 1.5 माह का वक्त दे दिया। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी के ज़ेरे सदारत इजलास में सेहत मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद, MS DHQ डॉक्टर शहबाब आलम ने ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर ने गुलाम नबी ब्लॉक को 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी का काम 1.5 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मर्दाना और जनाना सर्जिकल वार्ड बहाली के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चिल्ड्रन वार्ड को जरूरत के मुताबिक डिजाइन किया जाए।
फैसल आबाद का नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल 100 बेड पर फॉल न हो सका। महकमा सेहत ने गायनी, अमराज बचगान, मेडिसिन और सर्जरी के 100 बेड्स ऑपरेशन थिएटर के 30 सितंबर तक फॉल करने की नवीद सुनाई थी। तफसीलात जानिए आज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में। महकमा सेहत नुसरत फतेह अली खान हस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल कराने में नाकाम। हस्पताल गायनी, अमराज बचगान, मेडिसिन और सर्जरी के 100 बेड और ऑपरेशन थिएटर 30 सितंबर तक फाल होना थे। MS नुसरत फतेह अली खान हस्पताल डॉक्टर अताउल मोन्नम कहते हैं, OPD ब्लॉक मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है। इमरजेंसी वार्ड में 7 बेड से बढ़ाकर 25 बेड कर दिया गया है। OPD ब्लॉक जो है, जो हमारा पीछे की तरफ था, वो उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है और उसमें बिजली जो है वो चल गई है और हमने तमाम जो हमारे OPD के कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनको अपने कमरे जो हैं वो अलॉट कर दिए हैं और OPD जो है आज आप देख लेंगे वो चल चुकी है। MS का मजीद कहना था कि ऑपरेशन थिएटर की मशीनरी नस्ब कर रहे हैं, डायलिसिस मशीनें भी लग रही हैं, बिजली कनेक्शन फर्स्ट फ्लोर और OPD तक मुकम्मल कर दिया है। 15 से 20 अक्टूबर के दरमियान अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। तो प्लान यही है कि हम 15 से 20 अक्टूबर तक फुल एक्टिव करके तमाम अपनी जो मशीनें इंस्टॉल करके, टेस्टिंग उनकी करके, कमीशनिंग वगैरह करके फिर हम उसको इफ्तिताह की तरफ जाने शुरू करेंगे। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल 250 बेड पर बनाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 100 बेड फाल किए जाएंगे। कैमरामैन जुनेद अली के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। इलाज मिलेगा, मर्ज की तशखीस खुद कराएं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट की इकलौती CT स्कैन मशीन खराब रहना मामूल बन गया। मरीज CT स्कैन के लिए ख्वार निजी लेबॉर्ट्रीज का रुख करने पर मजबूर हैं। महंगाई के सताए बीमार शहरियों की मुश्किलात में कमी न हो सकी। चिन्योट जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की CT स्कैन मशीन 2 दिन से खराब। गरीब मरीज CT स्कैन कराने के लिए दरबदर। मरीज और लवाहिकीन अस्पताल इंतजामिया पर फट पड़े। कहा तरह तरह से परेशान किया जाता है। कई किलोमीटर का सफर करके अस्पताल आते हैं मगर यहाँ मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। कभी अद्वियात गायब तो कभी मशीनें खराब होती हैं। CT स्कैन कराने आए हैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल के होते बावजूद यहाँ CT स्कैन नहीं हो रहा। हर महीने 1-2 बार मशीनें खराब हो जाती हैं और हमें फैसलाबाद जाना पड़ता है किराया भर के। महंगाई का दौर है ये हमारा जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि इसमें इसकी मशीन को ठीक किया जाए कि गरीब आवाम तंग हो रही है, बाहर से महंगे करवाने पड़ते हैं CT स्कैन। शहरियों का कहना था कि इलाज के लिए दूसरे शहर मरीज को लेकर जाना आसान नहीं। सफर की अजियत, अखराजात में कई गुना इजाफा हो जाता है। इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में प्राइवेट कंपनी CT स्कैन करती है। मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से CT स्कैन मशीन बंद हुई। आज शाम तक CT स्कैन मशीन फाल कर दी जाएगी। शहरी कहते हैं मुख्तलिफ अमराज में तशखीस के लिए CT स्कैन कराना होता है। अस्पताल इंतजामिया मशीन जल्द ठीक कराए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जिला चिन्योट का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल मसाइलिस्तान बन गया। DHQ हॉस्पिटल में सिफारिशी कल्चर से आम मरीज रुलने लगे। अल्ट्रासाउंड के लिए खवारी, शहरी का अमले पर हामिला खातून से पैसे बटोरने का इल्जाम। चिन्योट में महकमा सेहत के अफसरान की नाअहली खुलकर सामने आ गई। करोड़ों के हुकूमती फंड्स, मशीनरी और डॉक्टर्स के बावजूद जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मर्दो हामला खवातीन को अल्ट्रासाउंड के लिए ख्वार होना पड़ रहा है। तमाम सहूलियात के बावजूद अस्पताल में दोपहर 1 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं। प्राइवेट माफिया मरीजों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर इजाफी चार्जेस वसूल करने में मसरूफ। अगर सुबह 8 बजे पर्ची जमा कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग 12 बजे आ जाइएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। जो सिफारशी लोग होते हैं उनको वो कहते हैं कि चले जी आप पीछे हट के बैठ जाएं, बुला लेंगे, आपको कह दिया नंबर लग चुका है। उसके बाद वो कहते हैं हाँ जी आपका टाइम खत्म हो गया, आप अगले दिन आ जाइएगा। जब अगले दिन आए तो आज भी टाइम खत्म हो गया है, आज भी नहीं हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। सारे लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं। अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए आए शहरी कहते हैं 24 घंटों में सिर्फ 25 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एक और शहरी ने इल्जाम किया कि हुकूमती अहकामात के बावजूद अस्पताल का अमला हामला खवातीन से भी अल्ट्रासाउंड के लिए पैसे ले रहा है। ਅਸੀਂ जनाब अल्ट्रासाउंड वास्ते पर्ची सुबह जनाब 8 बजे जमा करवाई है। मैंने उन्हें आखिया जी 10 बजे ਤੁਹਾਡਾ नंबर लग गया, 10 बजे आ जावे। फिर 10 बजे गया, फिर 1 बजे जी मुड़ जनाब 4 बजे तक ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲੋ ख्वार हो के जनाब इतों अल्ट्रासाउंड वास्ते 3 दिन ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ। अखीर दी बाकी ਅਸੀਂ भाईजान बाहरों जाके अल्ट्रासाउंड करवाया। इत्थे जनाब या डॉक्टर चेंज की जाए तो अल्ट्रासाउंड वाली ते या जनाब इत्थे जड़ा ना 2 शिफ्टां चलाइयां जावन। अस्पताल इंतजामिया के सताई शहरियों ने दुहाइयां देते हुए बताया कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कभी लेट आती हैं तो कभी कोई और मसला बता दिया जाता है। हामला खवातीन और दीगर मरीजों को घंटों इंतजार जैसी अजियत से 2-4 होना पड़ता है। शहरियों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान से नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।